A very good afternoon, respected Director Ma'am, Executive Director Sir, conveners of this and co-conveners of this national conference. Thanks for giving me a chance to be here, and I'm very privileged to speak at such a nice stage, at such a nice event. So, not taking much of time, I would start my presentation on digital convergence for Viksit Bharat at 2047. So, the first question arises, what is digital? क्या है ये digital? हम सारा दिन यही देखते हैं कि वो digital, 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 this, digital, that. What exactly is digital? So, digital is something that is in zeros and ones. Everything is binary. ये फिलहाल आई थिंक इस माइक को छोड़ के एवरीथिंग इज इन जीरोज एंड वंस. आपकी जेब में मेरी जेब में मोबाइल फ़ोन्स हैं. दीज आर ऑल जीरोज एंड वंस. जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं दैट इज़ ऑल इन जीरोज एंड वंस. सो everything, each and everything that is in zeros and ones is digital. So how these zeros and ones are helping us transform our economy to be one of the world's largest, to achieve our goals, as our Honorable Prime Minister said that we would be a developed nation in 2047. So it is all based upon innovation and technology growth in computer science. Being myself a researcher in computer science and from last say 15 or 20 years, so the focus of my today's presentation will be on computer science and on the fancy terms that you are hearing: AI, crypto, blockchain, cloud computing, edge computing, fog computing. So these will all be my theme for today. So starting with the agenda, digital transformation and vision. After that, we'll be discussing about technology foundations and innovation in that. Then, yes, most important, security, inclusion, and ecosystem growth. And then is digital governance and economy. And lastly, diversity, global leadership, and future trends. So, going with digital transformation and vision. So, first of all, the embracing of digital convergence. We will be the only generation which has seen a diverse transformation from analog to digital. पहले क्या था? There were PNT phones, landlines, yes, analog थे. After that, वो इतने बड़े मोबाइल फोन्स आए. After that, छोटे वाले मोबाइल फ़ोन आए. And after that, internet आया. We were working on internet. And in today's era, we are on Wi-Fi, we are on 4G, we are on 5G, 6G पे रिसर्च चल रहा है, 7G पे कुछ कंट्रीज़ पे रिसर्च चल रहा है. So हम वो एक जनरेशन है जिसने ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन एनालॉग से डिजिटल पे देखा है. एंड दिस इज, यस, इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर विकसित भारत. जितना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया में इन पास्ट ईयर्स में हुआ है, आवर वर्क फोर्स, सम पीपल से कि येस इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड. नो, द वर्क फोर्स वी आर हैविंग इन इंडिया, दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ. इसी से वी आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेकीज इन द वर्ल्ड. एंड लास्ट ऑफ ऑल, इनोवेशन. अभी आई वॉज गोइंग थ्रू सम स्टैटिस्टिक्स. सो इन इनोवेशन हमारे IITs, हमारे IISc एंड द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, इनका काफ़ी द रेशियो ऑफ applying for patents and the ratio of getting patents, it is around 75%, which is the highest in the world. So this is the thing कि हम लोग इस चीज़ के बारे में we are working on it. Yes, China and US is leading India in the number of good research papers published, but yes, India is not far away. Now coming about talking about these India's transformational journey. So first of all, जो चीज़ हमारे दिमाग में आती, that is digital India. So everything
जो हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन कुछ सालों पे देखा है, वी आर कमिंग ऑन डिजिटल, कुछ भी है दिस इज कमिंग ऑन डिजिटल। हमने मोबाइल्स में कहाँ वी वर हैविंग दोस छोटे छोटे वाले मोबाइल फोन्स, नाउ एवरीथिंग वी कैन एक्सेस ऑन मोबाइल्स, एप्स आर देयर ऑन मोबाइल्स, हर एक चीज़ का आपका सॉल्यूशन इट इज़ ऑन मोबाइल, एंड दीज आर अफोर्डेबल ऑल्सो। Right from starting this project of Digital India, Aadhaar, Aadhaar is one of the biggest achievements that can be done in, say, that is done in last 15 or 20 years. Aadhaar से बड़ा achievement नहीं हो सकता. Everything, your profile, your mark sheets, you know, आपका वो डिजी लॉकर है, दैट इज़ कनेक्टेड थ्रू आधार। सो जितना भी आपका प्रोफाइल है, जैसे मेरे से पहले भी जो स्पीकर्स थे उन्होंने बताया, सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद आधार। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट कैन बी अचीव्ड इन पास्ट फ्यू ईयर्स। देन इज भारत नेट। भारत नेट इज़ बेसिकली, आप लोगों ने कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। भारत नेट इज़ बेसिकली वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अब जब हम कंप्यूटर साइंस में लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, दैट मीन्स इवन इन द रिमोटेस्ट ऑफ विलेजेस, इवन इन द रिमोटेस्ट ऑफ टाउन, देयर इज इंटरनेट कनेक्टिविटी। पहले मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं थी, बट नाउ इंटरनेट कनेक्टिविटी इज देयर। और हम लोग अब यूपीआई भी यूज़ कर पा रहे हैं। पहले बिफोर कोविड पेटीएम बहुत ज़्यादा या गूगल पे बहुत ज़्यादा, इट वॉज नॉट इन यूज़। हम लोग येस वी वर यूजिंग इट, बट वी वर मोर डिपेंडेंट ऑन कैश। आफ्टर कोविड जब आया तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि जी व्हेन यू वर टचिंग दीज करेंसी नोट्स, उससे जी कोविड हो जाएगा। दिस वाज समथिंग दैट वाज हैपनिंग। सो हम लोगों ने शिफ्ट किया टुवर्ड्स डिजिटल पेमेंट, एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ 3, 4, 5 ईयर्स अब मुझे नहीं लगता किसी की जेब में वॉलेट होगा, किसी की जेब में कार्ड होल्डर्स होंगे। हम लोग का सारा गूगल पे पे चलता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो हमने इतने लास्ट ईयर्स में अचीव किया, एंड 4 और 5 ईयर्स में ये चीज़ अचीव हो सकती है। तो जस्ट थिंक वी आर अराउंड 21 ईयर्स टू गो टूवर्ड्स 2047। क्या कुछ अचीव नहीं हो सकता? देन जो हमारे इंडिया का जो फोर्टे है, दैट इज़ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, यू हैव हर्ड इन रिसेंट बजट सेशंस एंड ऑल, आईटी को स्पेशल बजट मिलता रहा है। एंड आईटी में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हो रहे हैं या इंडिया में जो उनको बूस्ट मिलता है, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। इन द रिसेंट बजट सेशन जो डेटा सेंटर्स हैं, अब नाउ मेरे से पहले भी जो स्पीकर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जिसके पास डेटा है, जिस कंट्री के पास डेटा है, दैट इज़ द विनर। एंड इंडिया, इट इज़ हैविंग enormous amounts of data. Data means something raw, and yes, we can extract information about from that. वो हम लोग आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो गवर्नमेंट रिसेंट बजट सेशन में डेटा सेंटर्स को स्पेशल अलॉटमेंट, स्पेशल टैक्स हॉलीडे मिला है इफ़ एनीवन इज़ इन्वेस्टिंग इन इंडिया फॉर डेटा सेंटर्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि हमारी गवर्नमेंट कितनी प्रोएक्टिव है इसके बारे में। आफ्टर दैट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, द क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसका उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी ऑफ दैट, द एक्सेस टू रिसर्च वर्क, वन ऑफ द थिंग्स, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं ये, एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू द गवर्नमेंट्स विजन टू bring technology to another level. Then is the societal and economic impact, and it is yes, सारी चीज़ें जो भी हमारा ये आजकल जो भी हमारे पास डेटा है या हम लोग कहीं पे वी आर वर्किंग ऑन इट, तो ये सारी चीज़ें इट इज़ जो इसका जो गोल है दैट इज़ टू बूस्ट द इकोनॉमी, एंड इट इज़ हैविंग अ बिग इकोनॉमिकल इम्पैक्ट. Then is continuous innovations. We as Indians, there is a word, jugaad. So jugaad is innovation. So we are working on this. हर एक जगह पे there is innovation. Big universities, private universities, government universities, they are working on innovations. And talking about innovation in computer science, there are some fields जिसमें developments होने रह गए हैं, which are here to be
जिसमें और इनोवेशंस हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड्स दे आर ऑलरेडी डिस्कवर्ड. लाइक लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजीज. 2G आया, 3G आया, 4G आया, वी आर वर्किंग ऑन 5G, आगे 6G आएगा, 7G आएगा. द बेस इज़ द सेम, बट वॉट वी आर डूइंग इज़ कि इसमें जो हम लोग इनोवेशंस कर रहे हैं, जो हम इसमें छोटे छोटे ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे हैं, दैट इज़ द थिंग. एंड ट्रस्ट मी, वी आर नॉट लैगिंग वेरी फार बिहाइंड दीज डेवलप्ड कंट्रीज. हम लोग तकरीबन उनके साथ ही चल रहे हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च एंड द रिसर्च कम्युनिटीज़. नेक्स्ट, यस, कंप्यूटर साइंस, इट इज़ द इंजन ऑफ चेंज. जब से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर्स हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट ने इसको यूज़ कैसे किया, एंड इट हैज़ हेल्प्ड हमारे हमारे जो कंट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इट हैज़ हेल्प्ड लॉट. एंड इट हैज़ enabled breakthroughs in AI, Internet of Things and cloud computing. Then is transforming education. Education का transformation using computer science and computer science related technologies is a big thing. Now we are having these edtech companies, we are having these ERP solutions. These are all in one. मतलब you take an ERP solution for a college, वो आपको सब करके देगा. वो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस की काउंट भी रखेगा, वो बच्चों का इवेल्युएशन भी करेगा, वो फीस भी कलेक्ट करेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद बच्चों का रिपोर्ट कार्ड वहीं से जनरेट होगा, सेशनल की ग्रेडेशन वो करेगा, ईच एंड एवरीथिंग जो भी होगा वो सारा ERPs पे अवेलेबल है. एंड edtech companies, they are also giving their best कि स्टूडेंट्स को, आप लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले. आपको वो छोटी छोटी कंपनीज हैं, कोर्सेरा है, वाइट हैट है, सो छोटे छोटे वहाँ पे कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है. सो दे आर ऑल्सो गिविंग देयर बेस्ट. एंड वो क्यों है? बिकॉज देयर इज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दैट थिंग. आप ऐसे कोई भी कंपनी, यू कैन नॉट ओपन दैट कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया, यू कैन नॉट ओपन दिस टाइप्स ऑफ कंपनी इन US. वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ग्रांट्स, ऐसे नॉर्म्स नहीं हैं. एंड हेयर इट इज़ वेरी ईजी. एंड गवर्नमेंट इज़ स्पेशली इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेटिव कंपनीज. आप नो डाउट आप उठा के बेकरी के बिस्किट्स आप टेक्नोलॉजी पे, यूजिंग टेक्नोलॉजी आप उसको सेल कर सकते हो. गवर्नमेंट उस पर भी ग्रांट देती है. देन इज रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर. हेल्थ केयर में मैम ने जैसे बताया कि वी कैन यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली हम लोग कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आई सपोज के सुबह से AI सारे सुन रहे होंगे, तो यू वुड बी हैविंग एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़. सो मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ. इट इज़ अ बंच ऑफ मॉडल्स बेस्ड अपॉन डेटा which enables you to have some decisions, or which provides some decisions. Like एक एरोप्लेन उड़ा, हवा में गया, उससे कुछ डेटा कलेक्ट हुआ. या वी कैन मेक इट मोर सिंपल. आज का दिन, आज सुबह सूरज इतने बजे निकला, ठीक, और आज के दिन लाइक टुडे इज 21st, तो 21st पिछले 20 सालों से 21st ऑफ फरवरी को सूरज कितने बजे निकला, मॉइस्चर कितना था, उसके बेसिस पे, एंड यस एन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स मोर, उसके बेसिस पे वी कैन प्रिडिक्ट कि आज सुबह ठंड होगी, गर्मी होगी, क्या होगा. सो दिस इज AI. कोई बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बट यस मॉडल मेकिंग इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. देन इज कमिंग टू द टॉपिक रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर. सो हेल्थ केयर में आप मतलब सिंपल सा आप एग्जांपल लो. आपने एक लैब टेस्ट करवाया, लैब टेस्ट के बाद यू गॉट द रिपोर्ट ऑन योर फोन,
वो फ़ोन उठा, वो रिपोर्ट उठा के यू कैन अपलोड इट ऑन चैट जीपीटी। क्या होगा? इट विल गिव रिजल्ट्स कि आपको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है डॉक्टर्स मे मिस अ पॉइंट, but this AI, it is trained on lakhs and crores of data sets कि वो पॉइंट मिस करने की जो परसेंटेज है ना, एज कंपेयर टू अ ह्यूमन, वो बहुत कम रहेगी। आपने एक्सरे करवाया, गिव इट टेक इट ऑन अ गुड वाइट स्क्रीन, उसका फोटो लो, यू कैन अपलोड इट ऑन चैट जीपीटी, और यू कैन अपलोड इट ऑन जेमिनाई, और क्लाउड पे आप कर सकते हो, ग्रुप पे आप कर सकते हो, एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। डॉक्टर एक फ्रैक्चर शायद मिस कर जाए, बट एआई कैन नॉट मिस अ फ्रैक्चर। सो दिस इज द लेवल कि एआई मॉडल्स को इस हिसाब से ट्रेन किया गया है। एंड यस, आफ्टर दिस चैट जीपीटी रिलीज 2 or 3 years बैक, द होल लैंडस्केप हैज़ चेंज्ड। हम लोग पहले बैठ के इफ वी हैव टू राइट समथिंग, वी हैव टू एनालाइज समथिंग, तो व्हाट वी यूज टू डू इज लैपटॉप खोला, बैठे कुछ दिन सोचा, कुछ पहले तो पेन से स्क्रिबल किया, आफ्टर दैट कुछ लैपटॉप पे लिखा। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम द एआई। एआई से बड़ा इजी हो जाता है, बट यस फॉर अनएथिकल पर्पसेस ऑल्सो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, बट हम लोग बेटर के लिए यूज़ करें। Then is empowering industry. Industry में there is automation and there is smart manufacturing boost productivity. So basically है क्या कि जैसे AI की ही अभी बात कर रहे हैं, होता ये है कि there are some processes which needs to be optimized, which can be optimized, but हम लोग वहाँ पे कई बार point miss कर जाते हैं, और वो point miss करना this can cost crores. सो वो जो प्रोसेसेस हैं, हम उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए वी कैन यूज एआई बाय यूजिंग कंप्यूटर साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज। देन इज इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रैपिड राइज इन स्टार्टअप्स, ये आप लोगों को पता है सबको कि देयर इज अ रैपिड राइज इन स्टार्टअप्स। ऑन आर एरिया ऑल्सो, रुद्रपुर बिलासपुर वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी देयर इज अ रैपिड राइज इन स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स, एंड गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत बूस्ट करती है। कोई अपफ्रंट बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है, बट लोग एंड ड्यू टू दिस लोग बहुत ज़्यादा इसको कर रहे हैं। आप में भी कुछ लोग सोचते होंगे जी स्टार्टअप करेंगे, यस यू कैन डू इट। टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स यू कैन वर्क अपॉन इट, हो सकता है। ऑल यू नीड इज एन आइडिया। Like Amazon, we can take an example of Amazon. What Amazon used to do? Amazon पहले during our times, back in 2005, 2008, 2010, Amazon used to sell books. उसके पास एक ही प्रोडक्ट था, that was books. अब देखिए Amazon क्या कर रहा है, एंड आइडिया क्या है उसके पीछे। आइडिया सिर्फ इतना था कि yes we can sell anything on internet. अब जिनके पास इंटरनेट था उस टाइम पे उन्हीं लोगों ने वो बुक्स परचेज की। नाउ वी आर ऑल हैविंग इंटरनेट। अब अमेजोन का बिजनेस इतना कि ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, जेफ बेजोस, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो ऑल यू नीड इज़ एन आइडिया, एंड इसी पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत ज़्यादा जोर है कि आप इंडिया में ही इन्वेस्ट करें, इंडिया में ही आप अपने कंपनीज वगैरह स्टार्ट करें। कंपनी स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में तो नहीं लगती है, एंड आपको एक लैपटॉप ही चाहिए टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करने के लिए। देन इज एमरजेंस ऑफ टेक हब्स। आप लोगों को पता है बेंगलोर, पुणे, चंडीगढ़, ये सारे, हैदराबाद, दीज आर ऑल टेक हब्स। यहाँ पे छोटे छोटे स्टार्टअप्स खुले हुए हैं। दे कैन स्टार्ट फ्रॉम मेकिंग अ वेबसाइट, वेरी इजी थिंग। पहले वेबसाइट बनाने को वी यूज टू टेक 10 days, 15 days, 5-7 days लग जाते थे। नाउ तब तो 2 घंटे में वेबसाइट तैयार हो जाती है, एंड 2 घंटे में यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट, यू कैन सेल इट। आपका स्टार्ट हो गया इनोवेशन, आपका एक स्टार्टअप स्टार्ट हो गया। देन देर इज़ अ सिनर्जी बिटवीन एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ये सारी तीनों चीज़ों को मिला के चल रहा है, एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। एंड देन इज incubators and accelerators. Government is giving funds for incubation centers in colleges. So अगर कोई कॉलेज इन्वेस्ट करता है in students, in technology,
एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस, तो गवर्नमेंट भी वहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली जो आइडिया है गवर्नमेंट का, दैट इज़ यू स्टार्ट फ्रॉम राइट अवे फ्रॉम कॉलेज। यू आर इफ़ यू आर BCA वाले स्टूडेंट्स होंगे आई सपोज यहाँ पे, सो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी ईजी। ऑल इट टेक्स इज़ अ लैपटॉप एंड एन इंटरनेट कनेक्शन। Then is technology foundations and innovations. AI, it is reshaping society and economy, and it is driving innovation, efficiency, and new business models. It is enhancing decision making in healthcare, education, and industry. अब decision making के लिए हम लोग को जो calculations करनी पड़ती थी, AI can do it. AI can make projections. आपको पहले Excel में we used to spend hours and hours के इसका projection कैसे बनेगा, ये चीज़ कहाँ पे जा रही है, AI can do it in 20 or 30 seconds, because models वहाँ पे pre-created हैं and AI is trained on that models. Then is Indian AI initiatives, and there are government-led programs for AI research and adoption. आज सुबह मैं इसको पढ़ रहा था कि the government of Uttar Pradesh, it has mandated people, employees of the government of Uttar Pradesh कि सबको एक कंपलसरी AI कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बिना नौकरी खतरे में आ जाएगी। ये सुबह सुबह का ही है, कल शायद बजट सेशन में उनका ऐसा कुछ हुआ था। सो द फोकस इज ऑन AI. यू शुड बी एटलीस्ट AI अवेयर कि AI आपको कहाँ हेल्प कर सकती है। ये नहीं है कि टीचर ने असाइनमेंट दिया, आपने ChatGPT डाला, इट इज़ वेरी इजी, डाउनलोड किया एंड नेक्स्ट दिन टीचर को वही आपने लिख के दे दिया या प्रिंट करके दे दिया। नो, रिसर्च के लिए यू कैन यूज़ AI। आप आंसर्स ले सकते हैं, इट हैज़ बिकम वेरी इजी। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, पहले गूगल पे सर्च करते थे, फिर गूगल कुछ रिजल्ट देता था, आपको एक बेस्ट रिजल्ट निकाल के उससे पढ़ना पड़ता। नाउ इट इज़ वेरी इजी। आप किसी भी AI प्लेटफॉर्म पे जाइए, यू राइट दैट प्रॉम्प्ट लिखने के बाद यू विल गेट एग्जैक्ट रिजल्ट्स। इट हैज़ बिकम वेरी 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 ईजी नाउ। तो अच्छे के लिए यूज़ करना है, बुरे के लिए यूज़ करना है, वो आप लोगों के ऊपर है। देन इज़ AI रिसर्च एंड सक्सेस स्टोरीज। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे भी इन्वेस्ट किया है, स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर, फिनटेक एंड हेल्थ। एंड नेक्स्ट इज़ द कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। देन इज़ द फैंसी टर्म बिग डेटा। बिग डेटा, नाउ डेटा इज़ अ ट्रेजर। जिसके पास डेटा है वो दुनिया चलाएगा। व्हाट इज़ बिग डेटा? बिग डेटा इज़ बेसिकली बिग अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। उससे हम कई सारी चीज़ें डिड्यूस कर सकते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमें क्या उसमें से इंफॉर्मेशन हमें लेनी है। सपोज वी आर हैविंग यहाँ के बहुत सारे स्कूल्स का डेटा है एंड वी हैव टू डिड्यूस फ्रॉम दैट के एडमिशन्स कहाँ से आ रहे हैं मैक्सिमम। सो वी कैन डू दैट, अ पार्ट ऑफ बिग डेटा। डेटा का थोड़ा सा डेटा को क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद हम कुछ प्रॉम्प्ट्स वहाँ पे डालेंगे एंड कुछ क्वेरीज जनरेट करेंगे एंड विल गेट द रिजल्ट्स वेरी इजी। सो it is what exactly it is doing, it is actually enhancing the decision making process, it is transforming governance। अगर हम बहुत बड़े स्केल पे बात करें, गवर्नमेंट हैज़ ऑल द डेटा कि कौन सी स्टेट में कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, क्या इनकम है, क्या पॉलिसीज़ अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है। इन उत्तर प्रदेश वी आर हैविंग दिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट थिंग। एक डिस्ट्रिक्ट का देयर इज़ वन प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज़ सेलिंग इन फॉरेन कंट्रीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन इज़ बिजनेस इंटेलिजेंस and social impact applications, which is having data solutions for health, education and welfare. Then is cloud computing, another fancy term. Cloud, हवा में कुछ नहीं है, क्लाउड में कुछ नहीं है। आप लोगों को अब तक शायद ये पता लग गया होगा, कुछ रिमोट लोकेशन पे कुछ डेटा सेंटर्स हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं है, एंड दोज आर गिवन दिस फैंसी टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आपने गूगल ड्राइव पे अपना डेटा डाला, आपको पता नहीं है कि डेटा बेंगलोर गया, US गया या किसी और लोकेशन पे सेव हुआ या शायद अंडर वाटर किसी डेटा सेंटर पे वो सेव हो गया।
that is given the name cloud. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. And I've had the privilege to meet Dr. Rajkumar Boya, and he's called the father of cloud computing, and currently doing his research work in MIT Melbourne. He's the head of Clouds Lab. So उनका बहुत अच्छा रिसर्च है क्लाउड के बारे में. So क्लाउड का भी ये है कि एवरीथिंग जो भी आप अभी एक्सेस कर रहे हैं, आपने अपनी मेल एक्सेस करनी है, आपको पता नहीं है कि डेटा कहाँ पर है. वो दैट अननोन थिंग, इट इज़ कॉल्ड क्लाउड. इट इज़ अ स्केलेबल डिजिटल सर्विस. बाय स्केलेबल वी मीन कि यू कैन इन्हांस इट टू एनी लेवल. अगर आपके पास आज एक टीबी है, यू कैन इन्हांस इट टू 5 TB, 10 TB, 20 TB, जहाँ तक भी आप डेटा उसको लेके जा सकते हैं. एंड एक्सेसिबल सॉल्यूशंस फॉर ऑल. आपके पास आज आपका 1 TB डेटा खत्म हो गया है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पे अ बिट ऑफ मनी, थोड़ा सा पेमेंट कीजिए, एंड यू विल गेट अनदर TB ऑफ डेटा. देन क्लाउड एडॉप्शन इन इंडिया कई लेवल्स पे हो रहा है. एकेडमिक्स की बात करें तो क्लाउड एडॉप्शन इज यूज्ड, जैसे आपका ये गूगल वर्क प्लेस फॉर एजुकेशन करके एक सॉल्यूशन इज देयर. तो it gives you a wide range of softwares, applications that you can do online, that you can access online. बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो. सपोज देयर इज कोड यू हैव टू रन. तो पहला तरीका ये है कि उस कोड चलाने वाले सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करो. इफ़ इट इज़ पेड देन आप पे करके डाउनलोड करो, आप इंस्टॉल करो, एंड आफ्टर दैट आप अपना उस पर रन कर सकते हो जो आपका कोड है. Second option is you go to Google Labs. वहाँ जाके there is a similar platform, and आप उस प्लेटफॉर्म पे वही अपना कोड रन कर सकते हो. And this is also being used in IITs. Pruter के नाम से है वो, PRUTOR, Pruter, and you can access that also. Then is driving innovation, and yes, cloud में भी innovations चलती रहती हैं. Innovation in terms of speed, innovation in terms of optimization, innovation in terms of security. तो बहुत सारे इसके भी पैरामीटर्स हैं. Then is another fancy term, Internet of Things. आपने ये भी सब लोगों ने सुना होगा कि Internet of Things करके भी कोई चीज़ होती है. So Internet of Things basically means कि everything connected to Internet. छोटे छोटे tidbits, पंखा connected to the Internet, your watch connected to the Internet, this mic connected to the Internet, sensors, variety of sensors, proximity sensors, light sensors, humidity sensors, और n number of sensors, they're all connected to the Internet. तो इससे होता ये है कि हमारी थोड़ा सा जो डिसीजन मेकिंग है वो ईजी हो जाती है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड फिलहाल स्मार्ट सिटीज़, एज यू कैन सी इन स्लाइड, स्मार्ट सिटीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, बट यस, चलान काटने में तो ज़रूर यूज़ हो रहा है. देर आर सेंसर्स एट सर्टेन पॉइंट्स इन सर्टेन सिटीज़. आप यू गो बियॉन्ड द स्पीड लिमिट एंड चलान आपके फ़ोन पे आ जाएगा. ये हल्द्वानी वाली रोड पे भी वो आजकल वो लगे होते हैं. सो दैट डिवाइस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स थिंगी. सो ये सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं. एंड इससे हुआ क्या है, कहाँ वो पुलिस वाले, CPU वाले हमें रोकते, हमें हाथ देते, हम रुकते, थोड़ी सी बहस करते, आफ्टर दैट कुछ वो हमारा चलान काटते, एंड आफ्टर दैट वो हमें चलान वहीं पे देना पड़ता है, समथिंग होती. अब होता ये है कि वी गो बियॉन्ड द स्पीड लिमिट, कैमरा कैप्चर्स दैट, इट गोज टू दी, उनके पोर्टल पे वो इन्फॉर्मेशन जाती है, एंड दी चलान ऑटोमेटिकली कम्स एट आवर मोबाइल फ़ोन. एक मैसेज आ जाता है कि ऐसे ऐसे करके हो गया है. सो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के कारण ही इनेबल हो सकी हैं. देन येस, इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो. इंडस्ट्रीज में भी इंस्टेड ऑफ डूइंग मैनुअल थिंग्स, these sensors, internet of thing based things, these are there, जिनके कारण चीज़ें ऑप्टिमल हो गई हैं. एंड देन इज इनोवेशन एग्रीकल्चर. In agriculture, yes, it is used to track soil, weather and crop health for better yields. And then is healthcare advancements. इसमें we are using this in remote patient monitoring, smart diagnostics that can improve care. Then is most important thing, cyber security. We are all in cyberspace now,
and the security is one of the thing which is, सोचने की जो चीज़ है। हम लोग का सारा डेटा इंटरनेट पे जा रहा है। आपने शायद कभी ध्यान दिया ना हो या ना दिया हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, गूगल फ़ोटोज़। आप लोग सारे यूज़ करते हैं गूगल फ़ोटोज़। व्हाट इज़ गूगल फ़ोटोज़? आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन उस गूगल फ़ोटोज़ में जाके गूगल की जो सर्वर्स हैं वहाँ पे स्टोर हो रही है। ओके, अब सपोज यू आर हैविंग 15 GB ऑफ स्पेस। गूगल बाय डिफ़ॉल्ट सबको 15 GB ऑफ स्पेस दे रहा है, राइट? 15 GB ऑफ स्पेस। क्या आपको लगता है कि आपकी एक अलग से गूगल के सर्वर में हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसमें आपको 15 GB स्पेस दिया है? नो, अलग से हार्ड डिस्क नहीं है, वर्चुअल पार्टीशंस हैं। एक वो 1 TB की, 5 TB की, 10 TB की एक हार्ड डिस्क होगी जो उसके डेटा सेंटर में कहीं पर फिट होगी, और उसमें हम जैसे 20-50 लोगों का अकाउंट बना होगा और वहीं पर 50 GB स्पेस दिया होगा। 15 GB ऑफ स्पेस सबको दिया होगा। तो वहाँ पर बैरियर क्या है? आपका दूसरे डेटा में आपका एक्सेस या दूसरे का एक्सेस आपकी फ़ोटोज़ में ना हो। व्हाट इज़ द बैरियर? पॉलिसी ऑफ गूगल। सिर्फ देयर इज़ अ वर्चुअल बैरियर जो बचा रहा है, साइबर सिक्योरिटी जो बचा रहा है। अगर वो ना हो तो फ़ोटोज़ लीक होती रहती हैं। कभी एप्पल के क्लाउड में कुछ फ़ोटोज़ लीक हो जाती हैं, किसी की वीडियोज़ लीक हो जाती हैं। दिस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस। सो हम क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या हमारे फ़ोन में है, वंस देयर इज़ अ डिजिटल इम्प्रिंट, इट कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द साइबर स्पेस। एक फ़ोटो आपने ली और वो फ़ोटो इट रिमेन्स ऑन द डिजिटल स्पेस फॉर एवर। वो फ़ोटो कहीं नहीं जाएगी, वो फ़ोटो वहीं पे रहेगी एंड वो कभी भी एक्सेस हो सकती है। सो आई एडवाइस यू टू प्लीज़ use this very responsibly. Then is another important thing, digital trust. I've also had the privilege to work with Dr. Jakpreet Sidhu. He's one of the pioneers in digital trust, and he also is supposed to be my. He was also my co-guide in my PhD. So he's done a lot of work in digital trust. कि आप किस पे ट्रस्ट डिजिटल वर्ल्ड पे कर सकते हो। वो आते नहीं है मैसेज, कुछ आते नहीं हम लोगों को कि वो लिंक पे क्लिक ना करें। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ डिजिटल ट्रस्ट। वो आजकल वो मिर्ज़ापुर वाले जो एक्टर हैं उनके आजकल एड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं टीवी पे। व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग कि समझदार बनिए, समझदार बनिए। सो समझदार बनिए। डिजिटल जो आपका प्लेटफॉर्म्स हैं, यू डोंट हैव टू, फ़ोन पे एक मैसेज आया, यू डोंट हैव टू क्लिक ऑन दैट। वो कहीं पर आपको ट्रबल में ले जाएगा। एंड यस, कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंडिया, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, अकेडमिया, दीज आर ऑल वर्किंग टुगेदर ऑन दैट। इंडस्ट्री जो अकेडमिया है, वी आर गिविंग दी सजेशंस। इंडस्ट्री उसको दे आर मेकिंग दोज सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस ऑन दैट, एंड गवर्नमेंट उसको अप्लाई कर रही है। Then is digital inclusion and accessibility. Now इसमें we are bridging regional data gaps and expanding connectivity to underserved areas. कुछ साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि पहाड़ पे एक दूर कोई गांव होगा, वहाँ पर इंटरनेट भी पहुँचेगा या वहाँ पे फ़ोन कॉल भी पहुँचेगी। एंड येस, ड्यू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स वहाँ पे इंटरनेट इज़ वर्किंग, पेटीएम भी वहाँ पे चल रहा है। नाउ एम्पावरिंग मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हैं, रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में हैं, पहुंचा नहीं जा सकता। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि वहाँ पर भी वो चीज़ पहुँचे। एक्सेसिबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, हम सब के पास वी आर हैविंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड दीज आर मेड एक्सेसिबल टू अस। एंड इंक्लूसिव पॉलिसी इनिशिएटिव्स विच इज़ प्रोवाइडेड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। देन नेक्स्ट कम्स द सिक्योरिटी, इंक्लूजन एंड इकोसिस्टम ग्रोथ। स्मार्ट एजुकेशन, इसमें जो मेन रोल प्ले कर रही है, दीज आर दी एडटेक कंपनीज। एडटेक कंपनीज, कोर्सेरा, वाइट हैट, टू नेम अ फ्यू, ये सारा अपना इसमें दे आर गिविंग देयर लेवल बेस्ट के एजुकेशन में रेवोल्यूशन आए। And yes, they have brought in a revolution in education also. Like there is a company, White Hat का ही एक part है, White Hat Junior,
फर्स्ट और सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स को दे आर गिविंग कोडिंग क्लासेस. कोडिंग, yes, it is necessary and मिलनी भी चाहिए. Preparing youth for digital economy, and then is expanding reach and inclusion. Then is healthcare transformation with tech. मेरे से पहले पवनप्रीत मैम थे, so she has told a lot about this, so I'll just go through it. And telemedicine, it is via satellite communication, वो जो सारी medicines का consultation आप लोग ले सकते हैं. That is done. डॉक्टर यूएस में बैठा है एंड आपके दादाजी की रोबोटिक नी सर्जरी हो गई है, ये सारा इसके थ्रू ही है. एआई डायग्नोस्टिक्स, देन इज हेल्थ डेटा मैनेजमेंट, यस, थ्रू आभा पोर्टल एज डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, एंड इम्प्रूव्ड एक्सेस एंड क्वालिटी. डिजिटल गवर्नेंस एंड ई गवर्नमेंट, सो इसमें वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक सर्विसेज. पहले आपको कई सारी चीज़ों के लिए यू हैव टू गो टू, सपोज लैंड रिकॉर्ड निकालना है, आपको तहसील जाना पड़ता है. नाउ इट इज़ ऑन द ब्लिंक ऑफ click of your mouse. Citizen centric solutions are there, efficient and transparent governance is there, inclusive access for all is there, which is bridging the gaps between regions and communities. Then is fintech and digital economy. आप लोग सारे fintechs के जो कंपनीज फिनटेक यूज़ करेंगे, यू आर ऑल यूजिंग दैट. आपको पहले अगर स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना होता तो यू हैव टू गो टू सम ब्रोकर एंड वो सारा लंबा प्रोसेस था. यू कैन डू इट नाउ राइट फ्रॉम द क्लिक ऑफ योर फोन. आपको अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, यू कैन डू इट, आपके फ़ोन के आप क्लिक कीजिए, इट कैन बी डन. एंड और भी देयर आर एन नंबर ऑफ यूजेस. देन इज इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट and driving entrepreneurship and MSMEs. छोटी छोटी लोन्स की ऐप्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट की ऐप्स हैं, यू कैन यूज़ दैट. और ये सारा एक्सेस आपके फ़ोन पे है, एंड दिस इज़ ड्यू टू द डिजिटल इकोनॉमी. देन इज़ द डिजिटल गवर्नेंस एंड इकोनॉमी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद टेक्नोलॉजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to use this development very responsibly. And there are digital tools to optimize resource use and reduce the waste. Then is smart energy management. इसमें yes, IoT and analytics enable efficient energy distribution. Then is water conservation solution. पहले manual था, now it is totally automated. Waste management, manual था, now it is totally automated. All due to the recent technological developments, may it be blockchain, may it be IoT, may it be cloud computing. Then is vision for Viksit Bharat at 2047. We will be a digitally powered India. कुछ भी analog नहीं रहेगा, everything will be digital. Everything will be in zeros and ones. Then is innovation-driven growth. We are fostering startups and tech hubs. We are promoting research in emerging technologies. Then yes, we are having global leadership in technologies. जितने टेकीज़ इंडिया में हैं, जितने हमारे टेकीज़ यूएस में एक्सपोर्ट हुए हैं, उतने चाइना के भी नहीं हैं. We are one of the biggest software developers workforce in the world. We are collaborating internationally for knowledge exchange. We are positioning India as a tech innovation leader. And in sustainable and inclusive development, we are leveraging technology for environmental sustainability, and we are empowering marginalized communities. Then girls काफ़ी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, women in tech, empowering the change. आप लोगों का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहता है. India is one of the few countries which are championing in gender diversity. जितने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मेल हैं, उतने ही लगभग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लड़कियां भी हैं. एंड इट इज़ अ वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया. देयर आर एन नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम इंडिया इन विच जो हमारे वुमेन इनोवेटर्स हैं, दे आर यूजिंग टेक बेस्ड टेक्नोलॉजीज टू गिव समथिंग दैट मैटर्स. आपके आजकल सभी कुछ इंटरनेट पे है, ऑनलाइन शॉपिंग. These are mainly governed by females. So this is very important, and this is very good for India.
Then is future opportunities. We are expanding mentorship and skill development programs, and we are creating pathways for women in emerging tech fields. Then key takeaways and call to action. First of all is digital convergence, and here we are transforming India. And then is through this we are innovating in computer science, technologies being AI, IoT, cloud, and big data. And then is inclusive and sustainable development. And then is call to action. We are shaping the future through collaboration, innovation, and which will ultimately lead through Viksit Bharat in 2047. Then is global collaboration and leadership. India is now one of the global tech innovators with driving advancements in AI, Internet of Things, and cloud computing. Strategic international partnerships, knowledge sharing for growth, and it is actually expanding India's influence, showing Indian innovations on world stage. Then diversity, global leadership, and future trends. Coming to future trends, AI, IoT, 5G, these are working fine, बहुत अच्छा चल रहा है. But yes, there is always a scope of improvement. There is always a scope for optimization in computer science-based technologies. And the next frontier is quantum computing. India में we are working on quantum computing, but बहुत ज़्यादा innovation quantum computing पे है नहीं. Yes, few research groups are working on that, but China is leading in this field. But yes, given the workforce, the type of workforce, the age group of the workforce, we will be there in the quantum computing race. Then is blockchain and decentralization. It enhances security, transparency, and trust in transactions, and preparing for a dynamic digital era. Thank you. Jai Hind.